Hello guys, welcome back to my channel. So today, as I told in my last video that we will do some problems of Proel governor. So मैंने सोचा कि Proel governor के problems और Hartnell governor के problems मैं एक साथ आपको सिखाऊंगा. तो उससे पहले Hartnell governor का derivation सिखाऊंगा, ऐसे मैंने सोचा. तो let's start with Hartnell governor. So as you can see here, some terms I have written. आप मेरे थंबनेल में भी देखे होंगे कि ये टर्म्स मैंने डाले थे. दिस टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट when it comes to like derive the derivation. So before deriving the derivation, we will actually see the concept and the aspect, purpose of this governor. So as it is given, let m is equal to mass of each ball in kilogram, m is equal to mass of sleeve, r1 is minimum radius of rotation, r2 is maximum condition, omega 1 is minimum angular speed, omega 2 is maximum, s1 s2, these are all the terms, centrifugal force, and r, this point is important here, r, this is something new that we will learn in this governor, that you will understand in derivation. So here you can see the axis, the central axis. This is the collar, this is the spring where the maximum and minimum force varies. This is the bell crank lever, and this is the frame, and this is the point, this is the distance from the center of the axis. And r, मतलब इस डेरिवेशन में तीन कंडीशन आता है, एक मैक्सिमम कंडीशन, एक मिनिमम कंडीशन और एक मीन कंडीशन. तो मिनिमम कंडीशन पे जो लीवर है वो मिनिमम पोजीशन पे आता है. मतलब अगर बॉल स्पीड अगर ज़्यादा हो, अगर मैक्सिमम हो, तो जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो ऊपर आएगा, अगर बॉल स्पीड ज़्यादा हो तो मैक्सिमम कंडीशन में, और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो ऊपर आएगा, और जो स्लीव है दिस स्लीव, सी कंसिडर दिस पार्ट, दिस विल कम अप एंड दिस विल go towards the left from the axis. Now vice versa, when ball rotation is slow, when the rotation of the bell crank lever, all the ball of mass m is slow, it rotates in a slow process, in a slow way. तो जो स्लीव है वो राइट की तरफ जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो नीचे की तरफ जाएगा. रिमेंबर, एट मिनिमम कंडीशन हॉरिजॉन्टल आर्म गोज डाउनवर्ड, स्लीव गोज टुवर्ड्स द राइट. एट मैक्सिमम कंडीशन स्लीव goes towards the left from the center of the axis, that is axis of rotation and horizontal arm, and the horizontal arm comes upward. And third condition is the condition where the sleeve meets the axis, that is both are at mean position, like axis is already like it is the frame of reference, and the horizontal arm which moves, it comes towards the mean position, matches the axis, and the that is the sleeve matches the axis, and the horizontal arm is also that is both form a right angle. So उसका एक कंडीशन है. So that we will see कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है. So let's start with the derivation. So as you can see, I told कि अगर लीवर एट मिनिमम पोजीशन, लाइक ये मिनिमम पोजीशन कंडीशन है, तो जो स्लीव है वो एक्सिस से टुवर्ड्स राइट जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो नीचे जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल आर्म मतलब. बट रिमेंबर हियर द रेडियस, द आर, as I pointed during the notations, it is the distance from the
एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम फ्रॉम गवर्नर एक्सिस. सो जो मीन पोजीशन है वहाँ वो वाला कंसिडर करना है आर, लाइक फ्रॉम एक्सिस टू द मीन sleeve, mean position of sleeve. Same in the maximum condition, like here the horizontal arm goes upward and the sleeve goes towards the leftward direction from the axis of, from the mean position, from the mean position. axis तो इधर है, ये mean position है, तो with respect to the frame of reference of the mean position. So इन बोथ दिस कंडीशन, पहले तो हमें ये ढूंढना है, ये डिस्टेंस, ये वाला पार्ट जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है वो, और इसमें भी सेम, यहाँ से बॉल से, बेल क्रैंक लीवर से बॉल से मीन स्लीव पोजीशन के मतलब क्या डिस्टेंस है वो हम लोग को ढूंढना है. तो लेट्स स्टार्ट guys with the minimum position. So at minimum position, so if you have learned geometry then you will understand. Take these two triangles, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये H1 है, ये Y है, ये Y1 है, ये x है, ये x1 है. तो ये डिस्टेंस क्या है, ये r है, ये r1 है और ये a1 है. तो ये डिस्टेंस क्या है, r माइनस r1. सी बिकॉज r इज़ वॉट इज इक्वल टू a1 प्लस r1 एंड a1 हमें चाहिए. तो a1 क्या है, r माइनस r1. तो ये डिस्टेंस है r माइनस r1. सो एंगल ढूंढना है हमें, एंगल θ1 वी हैव टू फाइंड. सो θ1 क्या करोगे आप, साइन θ1 इक्वल टू h1 अपॉन y इज इक्वल टू r माइनस r1 अपॉन y. सॉरी, it is just a minute. Yes, it is y. And now for the maximum condition, sin θ2 is equal to h2 upon y इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ का डिस्टेंस r इज इक्वल टू a2 प्लस r2. सो व्हाट इज a2, r2 माइनस r, इट इज r2 माइनस r अपॉन y. ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कुछ ऐसा है, तो ये H2 है, ये Y2 है, ये R2 है माइनस R, ये Y है और ये x2 डिस्टेंस. तो H2 by Y on R2 minus R upon Y. ओके गाइस, सो ये हो गया एक. नेक्स्ट, add 1 and 2. what you will get, h1 plus h2 upon y is equal to, सी ये मत सोचो हाँ कि लाइक अरे ये बाकी सब क्या मतलब इसका क्या यूज़ किया है, एक्स का क्या यूज़ किया है या x2 का क्या यूज़ हुआ.
think in terms of angle. What is sin theta? Opposite upon hypotenuse. What is opposite upon hypotenuse? Opposite upon hypotenuse. यहाँ पर opposite upon hypotenuse. तो यही हुआ. R2 minus R1 plus R2 minus R upon X. कॉमन लिया हमने, ये x आएगा. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पर x है ना, ये x है और ये y है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड. ये y है, दिस इज y. दैट इज वाई आई हैव टेकन H2 अपॉन y. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. हियर देखो, वापस कर दे. H2 अपॉन y. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. दिस इज एडजेसेंट. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. Okay, now I think you have got it. And let H1 plus H2 is equal to H, which is total lift. तो H1 plus H2 H. तो H अपॉन वाई इक्वल टू, ब्रैकेट निकालोगे, माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1, R कैंसिल हो जाएगा, अपॉन X. तो H इक्वल टू R2 माइनस R1 Y बाई X. ओके, now what? Now becomes the important thing. Taking moment about 0.2 और मिनिमम कंडीशन, ये मिनिमम है. तो जैसे मैक्सिमम में दिख रहा है mg प्लस S2 अपॉन 2, वैसा यहाँ पर भी है mg प्लस S2 अपॉन 2. सो mg प्लस S2 अपॉन 2 इंटू y1, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो mg प्लस S2 अपॉन 2 इंटू y1. दिस इज क्लॉकवाइज. हाँ, तो ये नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव. सो ये नेगेटिव आएगा. So just a minute, I will write it properly. फर्स्ट पॉजिटिव टर्म्स ले लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव देखते हैं. जो FC1 है एंटी क्लॉकवाइज है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो FC1 इंटू x1 माइनस mg प्लस S1 अपॉन 2 इंटू y1 माइनस mg इंटू A1 क्लॉकवाइज इक्वल टू 0. तो mg प्लस S2 के टर्म्स में इसको अरेंज करो. तो पहले तो FC1 इंटू x1 इज इक्वल टू mg प्लस S2 अपॉन 2 इंटू y1 प्लस mg इंटू A1. Similarly, for max condition mg प्लस, हाँ अभी देखो,
ये तो सेम ही है क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव ही आएगा, माइनस एम जी प्लस एस टू अपॉन टू इंटू वाई टू, दिस इज माइनस प्लस प्लस। देखो अभी डिस्टेंस यहाँ पर देखो, ये मीन पोजीशन के अंदर था, ये मीन पोजीशन के बाहर है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस एम जी इंटू ए टू, प्लस एम जी इंटू ए टू with respect to the mean position, with respect to mean frame of reference, is equal to, या माइनस clockwise direction, anti clockwise positive, plus fc2 into x2 equal to 0. Think I have done some mistake, just a minute. Minus mg that side, नहीं सब राइट ही है, तो fc2 into x2 is equal to mg plus s2 upon 2 into y2 minus mg into a2. yes, everything is right. okay, so ये इक्वेशंस है, तो मैं वापस लिख दूंगा ये दोनों इक्वेशन, ये प्रॉपरली आपको समझ गया है तो लेट्स गो विद। पहला इक्वेशन क्या मिला हमें, एम जी प्लस एस वन इक्वल टू 2 बाय वाई वन जस्ट, ये मैंने एम जी प्लस एस वन के टर्म्स में रीअरेंज किया है, सो एफ सी वन इंटू एक्स वन माइनस एम जी इंटू ए वन। अभी सेकेंड इक्वेशन कैसा था, एम जी प्लस एस टू अपॉन टू इंटू वाई टू माइनस एम जी इंटू ए टू इज इक्वल टू एफ सी टू इंटू एक्स टू। तो इसको मैंने अरेंज ऐसा किया कि शिफ्ट किया, कुछ नहीं, ये देखो एम जी प्लस एस टू अपॉन टू इंटू वाई टू इज इक्वल टू एफ सी टू इंटू एक्स टू प्लस एम जी इंटू ए टू, और y2 और 2 को यहाँ पर लिखा बस, तो एम जी प्लस एस टू इज इक्वल टू 2 बाय वाई टू एफ सी टू इंटू एक्स टू प्लस एम जी इंटू ए टू। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2 वी कंसिडर, दिस इज इक्वेशन 1 वी कंसिडर, तो 2 माइनस 1 that is mg plus s2 is equal to 2 by y2 fc2 into x2 plus mg into a2, mg plus s1 is equal to 2 by y1 fc1 into x1 minus mg into a1। so माइनस सब्ट्रैक्ट करो, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2 बाय y2 FC2 इंटू x2 प्लस mg इंटू a2 माइनस 2 बाय y1 FC1 इंटू x1, ये माइनस साइन ब्रैकेट हो जाएगा, और माइनस एम जी इंटू ए वन। ये माइनस क्यों गया, ये माइनस क्यों किया मैंने,
minus minus plus, plus sign. If you open the bracket, you will get the same equation. I have done nothing complicated. So this equation, but this equation is not important. What is important is the concept, the derivation, like क्या कैसे आया ये, मतलब इस कि अगर आपको पूछा मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन पे स्प्रिंग स्टिफनेस कितना है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे, द वे ऑफ अप्रोच, बिकॉज द वे ऑफ अप्रोच इन द न्यूमेरिकल्स इज सेम एज द वे ऑफ अप्रोच वी डू इन दिस डेरिवेशन. So the next thing, the main thing, take the note of this equation. The simplest thing is the mean position. अगर मीन पे आ गए हॉरिजॉन्टल आर्म और स्लीव, mg मैच कर रहा है, fc मैच कर रहा है, आई विल गो लिटिल बिट फास्ट, मतलब xy, नो x1 नो y1, नो कन्फ्यूशन, mg प्लस s2 अपॉन 2 नीचे एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट मूवमेंट ले लो अबाउट 0.2, तो mg प्लस ये s1 पकड़ो, s1 अपॉन 2 इंटू y इज इक्वल टू fc1 इंटू x. मिनिमम पे अगर मैक्सिमम लिया तो mg प्लस s2 अपॉन 2, मतलब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम पे सेम ही रहेगा. क्यों? क्योंकि बॉल रोटेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंसी है. अभी माइनस करो, सेम वे में अरेंज करना है आपको वो mg प्लस s1 mg प्लस s2 के टर्म्स में, और 2x बाई वाई इंटू fc2 माइनस fc1, ऐसा आपको मिलेगा. ऐसा मिल गया. इसके बाद क्या, k का फॉर्मूला क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन h. सो s2 माइनस s1 तो ये है, और h का वैल्यू क्या है, r2 माइनस r1 y बाई एक्स. सो y बाई एक्स ऊपर आगे x बाई वाई आएगा. सो व्हाट इज़ द फाइनल फार्मूला, 2fc2 माइनस fc1 अपॉन r2 माइनस r1 x बाई वाई द होल स्क्वायर. This is the formula of K. Now इसका क्या मीनिंग है, फ्रिक्शन में क्या होगा, अगर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, अगर अल्ट्रेशन है, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, क्योंकि यू विल नॉट अंडरस्टैंड हियर दिस प्रॉपरली, लाइक व्हाट टू डू. इट इज समवॉट सिमिलर टू आवर थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट दैट वी यूज्ड इन स्टीम टेबल, द इंटरपोलेशन मेथड. सो अभी के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट पार्ट वी विल डील इन न्यूमेरिकल्स. एंड अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ रहेगा इस वीडियो पे, तो वापस डेरिवेशन में रिवाइज होगा कॉन्सेप्ट. सो टिल देन गाइस, पीस आउट, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.